dear students, welcome to Bahariya Model School PNAD Maripur Secondary Wing. I hope you all are fine. I am your chemistry teacher Shazia Amin, going to conduct your 9th lecture. So we started our chapter number 5, chemical bonded. So topics of today are electronegativity and ionic character in a covalent bond. So what are our learning objectives? To define values of electronegativities of different elements, to describe ionic character in a covalent bond, and to differentiate between polar, non-polar covalent bond and ionic bond. So in previous class we studied about the covalent bond. That covalent bond is a type of a chemical bond which is formed by the mutual sharing of electrons between two atoms. Okay, कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है जो इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है. एंड अकॉर्डिंग टू द number of electrons sharing between the bonded atoms, there are three types of covalent bond: single, double and triple covalent bond. In single covalent bond, each atom share its one electron, while in double covalent bond, each bonded atom share its two electrons to form double covalent bond, and it is represented by double short lines. Similarly, in triple covalent bond, each bonded atom share its three electrons and form triple covalent bond, which is represented by three short lines. We also studied their examples. आप देख सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड इन सारे कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में कौन सा बॉन्ड मौजूद है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. सिमिलरली डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड C2H4 इथीन गैस, इन सब में कौन सा बॉन्ड मौजूद है? डबल कोवलेंट बॉन्ड. Similarly, nitrogen gas and ethane gas is the example of triple covalent bond. So you can see covalent bond is formed between similar as well as dissimilar atoms. Similar atoms के दरमियान भी बनता है और dissimilar atoms के दरमियान भी बनता है. So we also studied that there is the difference of electronegativity between the bonded atom which is responsible for the formation of covalent bond. Okay, or ionic bond. So what is electronegativity? In previous classes we studied about the electronegativity, that is it is the ability of an atom to attract a shared pair of electron towards itself. किसी भी एटम की वो सलाहियत जिससे वो किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है. ओके, ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ एबिलिटी है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है. ठीक है, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन. और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? सीजियम की, डेट इज ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट. बिकॉज वी आल्सो स्टडीड पीरियोडिक ट्रेंड दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड. ठीक है, लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है due to the increase of number of electrons within shell. But when we move from top to bottom, the electronegativity decreases because of the addition of new shells. So Linus Pauling was a scientist who first calculated the values of electronegativity by comparing the amounts of energy required to break different types of bonds. ठीक है, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट की कि हर बॉन्ड को, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के दरमियान जो बॉन्ड्स थे उनको उसने ब्रेक करके देखा, और ब्रेक करने के बाद हर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उससे उसने उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की. ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की जो उसने जब वैल्यूज़ निकाली, सो इट इज़ द रेंज ऑफ बिटवीन 0 to 4. ओके, सो इसने एक स्केल जो है वो रेडी किया, और स्केल की रेंज क्या थी कि जितनी भी एलिमेंट्स थे उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ कितने का स्केल क्या था? 0 से 4 के दरमियान था. ठीक है, सो यू कैन सी द लाइनस पॉलिंग स्केल विच शो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके, सो वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजिंग अलॉन्ग द पीरियड एंड डिक्रीजिंग अलॉन्ग द ग्रुप. तो आप देख रहे हैं कि मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, जबकि ग्रुप 7A के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है. ग्रुप 8A के एलिमेंट्स तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते. ठीक है,
इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं होती, क्योंकि वो किसी से रिएक्शन शो नहीं करते। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 1A एलिमेंट्स की और सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? ग्रुप 7A एलिमेंट्स की। अब इसमें भी हम देखें ग्रुप 1A एलिमेंट की अलोंग द ग्रुप चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो सबसे कम किसकी है? सीजियम की, डैट इज़ 0.7। तो ये पेपर्स में भी पूछी जा सकती है कि लीस्ट नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? सीजियम। और कितनी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 0.7। फ्रैंकियम की भी 0.7 है, बट इसको क्यों नहीं कंसिडर करें? बिकॉज इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सबसे हाईएस्ट आप देखें फ्लोरीन, डैट इज़ 4.0। और इसने इसी से कंपेयर करते हुए बाकी एलिमेंट्स की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की। सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ओके, सो आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1 पॉइंट से ज़्यादा, ठीक है, बिटवीन 1.7 टू 4.0 हो, तो फिर उस सूरत में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। यानी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है और दूसरे की इतनी कम होती है, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में, अपने वैलेंस शेल में ट्रांसफ़र कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0.3 से 1.7 तक का है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होता बल्कि शेयर होता है, ठीक है। और शेयरिंग में भी किस टाइप ऑफ शेयरिंग होती है? डैट इज़ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है, इन बिटवीन 0.0 टू 0.3, ओके, या तो बिल्कुल ही ज़ीरो है या फिर 0.3 है, डैट इज़ वेरी स्मॉल। ओके, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींच सकेगा और इलेक्ट्रॉन सेंटर में ही रहेंगे। सो डैट इज़ द शेयरिंग, ठीक है। और कैसी शेयरिंग हो रही है? डैट इज़ कॉल्ड एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द electronegativity or values of electronegativity, there are two types of covalent bond: polar covalent bond and non-polar covalent bond. You can see comparison of bonding के बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो तो आयनिक बॉन्ड बनता है, कितना हो तो पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यही हमारे आज के टॉपिक हैं, द डिफरेंस बिटवीन आयनिक, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो यू कैन सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम इज़ 0.9, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.0। तो काफ़ी डिफरेंस है। 3.0 में से 0.9 माइनस किया तो कितना आया? 2.1, दैट इज़ ग्रेटर देन 1.7। ओके, इसलिए जो है क्लोरीन कंप्लीटली सोडियम के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने वैलेंस शेल में, और क्लोरीन पे नेगेटिव और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो देर इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो फुल आयोनिक चार्जेस। ओके, जबकि आप देखें HCl में हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें, बट शेयरिंग कैसे हो रही है? अनईक्वल शेयरिंग हो रही है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1, जबकि क्लोरीन की कितनी है? 3.0। जब हमने 3.0 को 2.1 से माइनस करें तो क्या आंसर आता है? 0.9। ओके, सो डैट इज़ लेस देन 1.7। बट चूँकि क्लोरीन की पावर ज़्यादा है, सो जिसकी पावर होती है वो अपनी पावर दिखाता है। सो हाइड्रोजन ऑल्दो अपना इलेक्ट्रॉन उसको नहीं लेने देता, लेकिन क्लोरीन उसको अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है। तो ज़्यादा झुकाव जो है वो इलेक्ट्रॉन का किसकी तरफ होता है? क्लोरीन की तरफ होता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल मीन हाफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन पे हाफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दैट इज़ द सिंबल ऑफ पार्शियल। ओके, यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 1.7 से कम है। सो शेयरिंग तो हो रही है बट अनईक्वल शेयरिंग हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव एक एटम की तरफ ज़्यादा है, जिससे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सो डैट इज़ कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोल्स बन रहे हैं ना, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। सो दिस शेयरिंग और कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बट इफ़ द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, तो आप देखें इसकी भी 2.1 है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, दोनों एक ही कुव्वत से एक दूसरे को खींचेंगे,
तो इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में ही रहेंगे, इनका झुकाव किसी एक की तरफ भी नहीं होगा क्योंकि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिल्कुल ज़ीरो है। तो ज़ीरो से, या अगर 0.3 है तो वो भी बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव किसी की भी तरफ नहीं होगा, वो सेंटर में ही रहेंगे। दैट इज़ कॉल्ड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी किसी पे भी पार्शियल और कंप्लीट चार्ज नहीं आ रहा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड, कोई पोल्स नहीं बन रहे पॉजिटिव और नेगेटिव, सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं उनका डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ज़ीरो और टू स्मॉल, सो इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव किसी एक भी तरफ नहीं होता बल्कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर होते हैं, ठीक है। सो देर आर सम अदर एग्जाम्पल। ऑक्सीजन में, ठीक है, दो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें बट बोथ आर सिमिलर एटम्स, so there is equal sharing of electrons, so it is totally non polar covalent bond. Similarly HCl में अभी हमने देखा कि polar covalent bond है because there is unequal sharing of electrons. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव थोड़ा इसकी तरफ ज़्यादा होता है, इसलिए क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए झुकाव इसकी तरफ ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी कैसा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट तो बन रहा है बट कोवेलेंट की कौन सी टाइप है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। सिमिलरली वाटर, दैट इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। शेयरिंग ही हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की बट because of the difference of electronegativity the electrons की जो झुकाव होता है वो किसकी तरफ ज़्यादा होता है, क्लोरीन ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। सो वाटर भी कैसा कंपाउंड है, हम बार बार जो कह रहे हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, water is a polar covalent bond, ठीक है। water is a polar compound, it have partial negative and partial positive charge, ठीक है। so water is polar in nature. so होम टास्क क्या है कि आपने लेक्चर को रिवाइज करना है और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। इसके अलावा ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है बुक के पेज नंबर 96 पे, ठीक है, जो आपने सॉल्व करना है और इसको कॉपी में भी लिखना है। Thank you so much students. The lecture will be continued.